This is Easy Understanding with Home Tuition. Hello children, this is Collins Publication English Alive Course Book 6. So today we are going to start second chapter of this book, Traveling with Grandfather Zoo. This chapter is written by Ruskin Bond. He is a very famous author. He has written many novels, poems, stories, etc. He has also got Padma Shri and Padma Bhushan award for his literary work. Now let's see the objectives. In this chapter, we will read an extract from a humorous story, learn about base words, prefixes and suffixes, learn about pronouns, simple present, present continuous and present perfect tenses. Listen to a passage for details, enact a role play and practice pronouncing the words with weak sound. Learn to write a creative story. Now let's see what are the characters involved in this chapter. Characters are Poppy, this is a parrot. Timothy, this is name of the tiger. Chips, this is name of a squirrel. All three are pet animals of the narrator's grandfather. Narrator is narrating the story. Grandfather, grandmother and Mabel. Mabel is the aunt of the author. Now let's start reading the chapter. Do you have pets or would you like to have pets? Read about the adventures that take place when a family decides to travel with few of their exotic and uncommon pets. यहाँ exotic का मतलब है विदेशी, क्योंकि यहाँ पे नरेटर के जितने भी पेट्स थे वो सारे विदेशी थे और सभी अनकॉमन थे. जैसे कि आप देख रहे हैं टाइगर, स्क्विरल और पैरेट. पैरेट तो कॉमन है लेकिन टाइगर और स्क्विरल जनरली किसी के पास नहीं होते हैं एज अ पेट. All aboard! shrieked Poppy, grandmother's pet parrot, as family climbed aboard the Lucknow Express. Shriek का मतलब होता है चीखना. तो यहाँ जो ग्रैंडमदर का पैरेट है, पेट पैरेट पोपी है, वो चिल्ला रहा है कि ऑल अबोर्ड का मतलब है अ वार्निंग कॉल मेड टू पैसेंजर्स ऑफ अ बस और शिप और ट्रेन व्हेन रेडी फॉर डिपार्चर. तो यहाँ जो पोपी है वो सबको आवाज़ लगा के सूचित कर रहा है कि क्या सब तैयार हैं चलने के लिए जब पूरी फैमिली लखनऊ एक्सप्रेस पे बैठती है. वी वर मूविंग फॉर सम मंथ्स फ्रॉम देहरा टू लखनऊ. हियर देहरा इज देहरादून. And as grandmother had insisted on taking her parrot along, grandfather and I insisted on bringing our pets too. A teenager tiger, grandfather's, and a small squirrel, mine. तो यहाँ पे सब लोग कुछ महीनों के लिए देहरादून से लखनऊ जाते हैं. यहाँ देहरादून से है. और जो ये ग्रैंड मदर है उनने इस बात के लिए कहा है कि वो अपना पैरेट अपने साथ लेके जाएंगी जो कि उनका पेट है. तो इस बात पे ग्रैंडफादर और जो नरेटर है वो भी इंसिस्ट करते हैं कि वो भी अपने पेट्स को लेके जाएंगे. तो यहाँ पे टीनेजर टाइगर जो कि ग्रैंडफादर का पेट है और स्मॉल स्क्विरल जो कि नरेटर की पेट है. बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथन बिहाइंड. प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल इन अवॉइडिंग रिस्क. अब ऑब्वियसली एक पाइथन स्नेक होता है. पाइथन को ले जाना हमेशा ही रिस्की होता है. तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि इस पाइथन को घर पे ही छोड़ के जाते हैं. इन दोज डेज ट्रेन्स इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड एंड इट वॉज पॉसिबल टू ट्रैवल विद अ वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स. उस समय इंडिया की जो ट्रेन्स थी वो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी ट्रेनों में और वहाँ पे पेट्स के साथ ट्रैवल करना आसान होता था. ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल बाय ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास. So we had a 4 berth compartment of our own, and Timothy the tiger had an entire berth to himself. तो यहाँ पे ग्रैंडफादर सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हर चीज़ स्टाइल से करेंगे, अपनी ट्रैवलिंग स्टाइल से करेंगे. तो इसलिए वो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं. उनके पास 4 बर्थ का कंपार्टमेंट है उनका खुद का, जिसमें कि टिमोथी जो टाइगर है उसके लिए अलग से एक पूरी बर्थ है. Later, everyone agreed that Timothy behaved perfectly throughout the journey. Everyone, even the guard, admitted that he could not have asked for a better passenger. No stealing from vendors, no shouting at coolies, no breaking of railway property, no spitting on the platform. तो सब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं इस बात पे कि जो टिमोथी है, जो टाइगर है, वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है
पूरी जर्नी में। और जो वहाँ का गार्ड है वो भी इस बात के लिए सहानुभूति बढ़ता है कि हाँ सच में ना ही उसने किसी पैसेंजर के साथ सीट बदलने के लिए कहा, ना ही कोई चोरी की वेंडर्स से। वेंडर्स होते हैं जो ट्रेनों में सामान बेचते हैं। और ना ही उसने कुली पे चिल्लाया, और ना ही उसने रेलवे की कोई भी प्रॉपर्टी ब्रेक की है, ना ही उसने प्लेटफॉर्म पे थूका है। स्पिटिंग का मतलब है थूकना। All the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. हर तरह हमेशा की तरह जर्नी में अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था जब तक कि हम लखनऊ नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब तक हम सब के अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट थी। To begin with, Poppy objected to vendors and other people poking their hands in through the windows. अब जो पोपी था, जो पैट था, ग्रैंड माँ का पेट था, उसे बहुत ऑब्जेक्शन था क्योंकि जो वेंडर्स थे वो ट्रेन की विंडो से हाथ अंदर डाल रहे थे। पोकिंग का मतलब होता है हाथ अंदर डालना। बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ देहरा स्टेशन, ही हैड निप्ड 2 fingers एंड टीक्ड अ टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर। यहाँ पे निप्ड का मतलब है, निप्ड का मतलब है बिट शार्पली, और टीक्ड का मतलब है पुल्ड। उसने ट्रेन जब देहरा स्टेशन से, देहरादून के स्टेशन से निकली भी नहीं थी कि उसके पहले ही उसने 2 लोगों की उंगली काट ली थी और टिकट इंस्पेक्टर का कान खींच चुका था। No sooner had the train started moving than Chips, my squirrel, emerged from my pocket to examine his surroundings. ट्रेन अभी चली भी नहीं थी कि चिप्स, जो नरेटर की स्क्विरल है, नरेटर की पेट है, वो नरेटर की पॉकेट से निकल आई। इमर्ज मतलब निकलना। केम आउट फ्रॉम नरेटर्स पॉकेट, ताकि वो अपने आसपास की सराउंडिंग को देख सके कि क्या है, कहाँ है, कौन लोग हैं। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर स्करिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर। इससे पहले कि जो नरेटर उसको रोकते, वो उसकी जेब से निकल के कंपार्टमेंट के बाहर जा चुकी थी और तेज़ी से छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ रही थी। चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वॉज अ squirrel's paradise, almost all the passengers having bought large quantities of roasted peanuts before the train pulled out. तो जो चिप्स है नरेटर की स्क्विरल, वो इस बात उसे ये पता चलता है कि जो ट्रेन है वो स्क्विरल के लिए पैराडाइज है। पैराडाइज मतलब जन्नत है, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स हैं लगभग सभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली लेके आए हैं। ये वो ट्रेन चलने के पहले ही वो ये इस बात का पता लगा लेती है। He had no difficulty in making friends with both children and grown-ups, and it was an hour before he returned to our compartment, his tummy almost bursting. वो हर किसी से दोस्ती कर लेती है, और जब वो कंपार्टमेंट में आती है तो उसका पेट एकदम भरा हुआ होता है, उसका पेट फट रहा होता है। बर्स्टिंग का मतलब है फट रहा होता है। I think I'll go to sleep, said grandmother, covering herself with a blanket and stretching out on the berth opposite Timothy's. It's been a tiring day. I think I'll go to sleep. अब यहाँ पे ग्रैंडमदर कहती हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए, और वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती हैं और वो बर्थ पे लेट जाती हैं। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब है बर्थ पे लेट जाती हैं, और उनकी बर्थ टिमोथी जो टाइगर है उसकी बर्थ के जस्ट सामने होती है, और वो कहती है इट्स अ टायरिंग डे। टायरिंग का मतलब है थका देने वाला। Aren't you going to eat anything? asked grandfather. अब ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम कुछ खाने नहीं वाली हो? I'm not hungry. I had some soup before we left. You two help yourself from the tiffin basket. अब वो कहती हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने स्टेशन पे निकलने से पहले ही सूप पी लिया था, घर से निकलने से पहले ही, और तुम लोग कुछ टिफ़िन से निकाल के खा लो। Grandmother dozed off. Even Poppy started nodding, lulled to sleepy by clanky clack of the wheels and the steady puffing of the steam engine. अब ग्रैंडमदर सो जाती हैं। डोज्ड ऑफ का मतलब है सो जाती हैं, और जो पोपी उनका पैरेट होता है, पेट पैरेट, उसका भी वो भी ऊँघने लगता है। नॉडिंग का मतलब है ऊँघना, क्योंकि जो लुल्ड का मतलब होता है, ये लुलाबी से कंपेयर करा गया है। लुलाबी का मतलब होता है लोरी, क्योंकि जो पहियों की क्लैंकी क्लैक, इसका मतलब है पहियों की आवाज़, क्योंकि जो पहियों की आवाज़ आ रही थी, और जो पहले के टाइम पे स्टीम इंजन होते थे उनसे जो पफिंग की आवाज़ आ रही थी वो उसे लोरी की तरह लग रही थी। वेल आई एम हंग्री, आई सेड, व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस? अब यहाँ नरेटर कहते हैं कि लेकिन मुझे तो भूख लगी है, दादी माँ ने क्या बनाया है हमारे लिए?
sandwiches, boiled egg, a roasted chicken, gooseberry pie. It's all in the tiffin basket under your berth. अब यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि दादी माँ ने सैंडविचेस, बॉयल्ड एग, रोस्टेड चिकन, गूसबेरी पाई होता है करौंदा, और ये सब टिफ़िन बास्केट में तुम्हारी बर्थ के नीचे है. I tugged at the large basket and dragged it into the center of the compartment. The straps were loosely tied. No sooner had I undone them, the lid flew open, and I let out a gasp of surprise. In the basket was grandfather's pet python, curled up contentedly on the remains of our dinner. अब जो नरेटर हैं वो टग्ड का मतलब है झटके से बड़ी सी बास्केट को खींचते हैं कंपार्टमेंट के सेंटर में, और उसके जो बद्दी होती है वो हल्की सी बंधी होती है, उसे खोलते हैं, और जैसे ही वो खोलते हैं लिड अपने आप ही खुल जाती है, और जैसे ही वो देखते हैं तो वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो बास्केट थी उसमें ग्रैंडफादर का पेट पाइथन होता है. पाइथन स्नेक है, वो घूमा हुआ लपटा हुआ उसमें बैठा होता है. अब यहाँ पे कंटेंटेडली का मतलब है हैप्पीली, सेटिस्फाइड. अब वो खुशी से उसमें बैठा होता है उन लोगों के खाना खा के. रिमेन्स ऑफ आवर डिनर है कि जो भी उनके ऊपर उनका खाना उसमें रखा होता है डलिया में, वो सब पाइथन खा लेता है और खुशी से बैठा होता है. Grandmother had insisted that we leave the python behind, and grandfather had let it loose in the garden. Somehow it had managed to snuggle itself into the tiffin basket. अब ग्रैंडमदर ने आग्रह किया था कि हम लोग जो पाइथन स्नेक है, ग्रैंडफादर का पेट है, उसको घर पे ही छोड़ के आएँ, और जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने इसलिए उसको गार्डन में खुला छोड़ दिया था. Somehow it had managed to snuggle. और लेकिन उसने किसी भी तरह से वो टिफ़िन बास्केट के अंदर घुस जाता है और वो कंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ तक उन लोगों के साथ आ जाता है, और उन लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल पाता है. Well, what are you staring at? asked the grandfather from his corner. अब अपनी बर्थ के कॉर्नर में बैठे हुए ग्रैंडफादर नरेटर से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्या घूर रहे हो. स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना. It's the python, I said, and it has finished all our dinner. अब नरेटर कहते हैं कि यहाँ पे पाइथन है और इसने हम लोगों का सारा डिनर खा लिया है. Grandfather joined me, and together we looked down at what remained of the food. Python doesn't chew, they swallow. Outlined along the length of the large snake's sleek body were the distinctive shape of chicken, a pie, and 6 boiled eggs. अब ग्रैंडफादर भी आते हैं और नरेटर के साथ उसे देखते हैं कि उसने हम लोगों का सादा खाना खा लिया है, और बताते हैं कि जो पाइथन है वो खाना चबाते नहीं हैं, वो सिर्फ निगल लेते हैं. च्यू मतलब चबाना और स्वैलो मतलब निगल लेना. वो सीधे खाना निगल लेते हैं, और जो उनकी जो बॉडी है, स्लीक बॉडी, जो उनकी जो चिकनी बॉडी है, उनकी एक खासियत है, डिस्टिंक्टिव मतलब स्पेशल क्वालिटी, कि वो जो भी चीज़ें खाते हैं वो उनकी बॉडी उस चीज़ का शेप ले लेती है, क्योंकि वो लोग चबाते नहीं हैं, इसलिए वो जो भी चीज़ होती है उसका शेप ले लेती है. जैसे कि अब यहाँ पे नरेटर और ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि उसने उनका चिकन खाया है, पाई खाई है, बॉयल एग्स खाए हैं, क्योंकि उसकी बॉडी उनका शेप ले लेती है. वी couldn't make out the sandwiches, but presumably very likely, presumably का मतलब है very likely, remained. These had been eaten too, because there was no sign of them in the basket. Only a few apples remained. Evidently the python did not care for apples. अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि बस हम लोग सैंडविच का ही नहीं पता लगा पा रहे थे, जो कि हमें लग रहा था कि उसने खा ही लिए हैं, क्योंकि बास्केट में उनका कोई भी नाम निशान नहीं बचा था, और वहाँ पे सिर्फ कुछ एप्पल ही बचे थे, क्योंकि जो पाइथन था उसने उनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, उसे ज़्यादा पसंद नहीं थे. ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट एंड शट एंड पुल्ड इट बैक बेनेथ द बुड. अब ग्रैंडफादर ने जल्दी से बास्केट को बंद करा और उसको वापस ही बर्थ के नीचे पुश कर दिया, धक्का देकर रख दिया. वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंडमदर सी हिम, ही सेड. अब ग्रैंडमदर ने तो लाने को मना करा था, पर वो अब अपने आप आ गया है, तो ग्रैंडफादर ने कहा कि हमें किसी भी तरह से इसको छुपा के रखना होगा. ग्रैंडमदर को, दादी माँ को ये दिखना नहीं चाहिए. शी माइट थिंक वी बॉट हिम अलॉन्ग ऑन पर्पस. वेल, आई एम हंग्री, आई कंप्लेंड. अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर हम लोग, उन्हें पता चल गया इस बारे में ग्रैंडमदर को, तो वो लोग सोचेंगे कि पाइथन को हम लोग लेके आए हैं अपने मतलब के लिए. अब यहाँ पे नरेटर कंप्लेन करते हैं कि लेकिन मुझे भूख लगी है, पाइथन ने तो सब कुछ खा लिया.
Just then, Chips returned from one of his forays and presented me with a peanut. अब तभी उसी समय चिप्स, जो कि नरेटर की पेट होती है गिलहरी, वो वापस आती है घूम फिर के. ऑफिस फोरेज का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट विजिट विद अ पर्पस. वो मतलब घूम के आती है और नरेटर के सामने उसे एक पीनट देती है. थैंक यू, आई सेड. इफ़ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स ऑल नाइट आई माई लास्ट अंटिल मॉर्निंग. नरेटर कहते हैं थैंक यू, थैंक्स. अगर तुम इसी तरह से मेरे लिए पीनट सारी रात लाती रहोगी तो सुबह तक तो मेरी भूख मिट ही जाएगी. बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी. क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा और मुझे नींद आने लगी. ग्रैंडफादर हैड बिगन to nod, and the only one who was wide awake was the squirrel, still intent on investing distant compartments. अब ग्रैंडफादर भी ऊँगने लगे और जो एक ही इंसान था वहाँ पे जिसको वो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगा हुआ था, वो थी स्क्विरल. और उसका बस एक ही इंटेंशन था कि अब वो जाए, फिर से कंपार्टमेंट्स में जाए और उसे मूंगफली मिले. A little after midnight there was a great clamor at the end of the corridor. Grandfather and I woke up. Timothy growled in his sleep, and Poppy made complaining noises. Suddenly, there were cries of "San, San." अब यहाँ पे आधी रात के बहुत ज़्यादा क्लैमर का मतलब होता है लाउड नॉइस मेड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शाउटिंग और टॉकिंग टुगेदर. अब वहाँ पे बहुत सारे लोग झुंड बना के हल्ला मचा रहे थे कॉरिडोर के बाहर. अभी हल्ला सुन के ग्रैंडफादर और नरेटर उठ जाते हैं. टिमोथी भी अपनी नींद में गुदगुदाता है. ग्राउल मतलब गुदगुदाना. और पोपी है जो पेट पैरेट है, वो कंप्लेन करता है कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं. और तो उसी समय आवाज़ सुनाई देती है सांप सांप. Grandfather was on his feet in a moment. He looked under the berth. The tiffin basket was empty. The python's out, he said, and dashed out of the compartment in his pajamas. I was close behind. अब ग्रैंडफादर तुरंत ही पैरों पे खड़े हो जाते हैं और बर्थ के अंदर देखते हैं और टिफिन बास्केट निकालते हैं और देखते हैं कि वो खाली है और कहते हैं, चिल्लाते हैं, पाइथन इज आउट. पाइथन निकल गया है, बाहर है. और तुरंत ही भागते हुए कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, कंपार्टमेंट से बाहर जाते हैं अपने पैजामा में. और मैं भी उनके करीब ही था. अबाउट अ डजन ऑफ पैसेंजर्स वर बंच्ड टुगेदर आउटसाइड द वॉशरूम. अब कम से कम एक दर्जन पैसेंजर्स जो थे उन लोगों ने झुंड बना के रखा था वॉशरूम के बाहर. एनीथिंग रॉन्ग? आस्क्ड ग्रैंडफादर कैजुअली. वी कांट गेट इनटू द टॉयलेट, सेड समवन. देयर इज अ ह्यूज स्नेक इनसाइड. Let me take a look, said grandfather. I know all about snakes. अब यहाँ पे ग्रैंडफादर बहुत सामान्य तरीके से पूछते हैं, जनरली पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है? तो एक आवाज़ आती है कि हम लोग टॉयलेट के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सांप है. तो ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे देखने दो, मुझे सांपों के बारे में बहुत जानकारी है. The passengers made way for him, and he entered the washroom to find the python curled up in the wash basin. After its heavy meal, it had become thirsty, and finding the lid of the tiffin basket easy to pry up, had set out in search of water. अब जो पैसेंजर्स हैं वो ग्रैंडफादर के लिए रास्ता बनाते हैं और ग्रैंडफादर वॉशरूम के अंदर एंटर होते हैं. तो वो देखते हैं कि जो पाइथन है वो लपटा हुआ वॉश बेसिन के ऊपर बैठा हुआ है. अपना सादा खाने के बाद, इतना ज़्यादा खाने के बाद उसे प्यास लगी थी और वो पानी को ढूंढते ढूंढते टिफ़िन बास्केट की लिड खोल के, जो कि प्राई अप का मतलब है ओपन, जो जिसको कि खोलना बहुत ही आसान था, उसको खोल के वो निकल जाता है पानी की तलाश में. Grandfather gathered up the sleepy, overfed python and stepped out of the washroom. The passengers hastily made way for him. अब ग्रैंडफादर वो जो स्लीपी मतलब कि नींद में और पेट भर के जिसने खाना खा लिया था उस पाइथन को समेटते हैं, उठाते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं वॉशरूम से. और जो पैसेंजर्स हैं वो हैस्टली का मतलब होता है हरीडली, जल्दी जल्दी उनके लिए रास्ता बनाते हैं. Nothing to worry about, said grandfather cheerfully. It's just a harmless young python. He had his dinner already, so no one is in any danger. अब ग्रैंडफादर बताते हैं
कि ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे पाइथन सिंक के ऊपर बैठा हुआ था, लपटा हुआ था और यहाँ पानी की खोज में आया था। अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, और वो ये बहुत उत्साह के साथ कहते हैं, चेयरफुली मतलब उत्साह के साथ। इट्स जस्ट अ हार्मलेस यूथ पाइथन, ये तो एक छोटा सा बिल्कुल ना नुकसान करने वाला पाइथन है, सब लोग इससे सुरक्षित हैं। उसने अपना खाना पहले ही खा लिया है, इसलिए वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। And he marched back to our compartment with the python in his arm. As soon as I was inside, he bolted the door. Grandmother was sitting up on her berth. अब वो तुरंत ही अपनी कंपार्टमेंट में वापस जाते हैं, पाइथन को अपनी बाहों में लेके, और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वो कंपार्टमेंट को में कुंडी लगा देते हैं। बोल्टेड मतलब कुंडी लगाना, उसके दरवाजे पे कुंडी लगा देते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडमदर जो हैं वो अपनी बर्थ पे बैठी होती हैं। आई न्यू यू डिड डू समथिंग फुलिश बिहाइंड माई बैक, शी स्कोल्डेड। अब ग्रैंडमदर डांटती हैं कि मुझे पता था तुम मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी ज़रूर करोगे। यू टोल्ड मी यू डिड गॉट रिड ऑफ दैट क्रिएचर एंड ऑल द टाइम यू हैव बीन हाइडिंग इट फ्रॉम मी। और कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुमने उस क्रिएचर से पीछे छुड़ा लिया है और तुम पूरे समय उसको मुझसे छुपा के रख रहे थे। ग्रैंडफादर ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विद इट, that the python had smuggled itself into the tiffin basket, but grandmother was unconvinced. अब ग्रैंडफादर जो हैं वो ये इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं करा है, और जो पाइथन है वो यहाँ पे स्मगल का मतलब है सीक्रेटली मूव्ड इन। जो पाइथन है वो चुपचाप खुद ही टिफ़िन बास्केट में घुस के आ गया है, लेकिन ग्रैंडमदर वॉज अनकन्विंस्ड, वो इस बात पे भरोसा नहीं करती हैं। वॉट विल मेबल डू व्हेन शी सी इट, शी क्राइड डिस्पेयरिंगली। तो अब वो कहती हैं कि मेबल आंट मेबल होती हैं कि अगर मेबल इसको देख लेगी तो वो क्या करेगी दोस्त को। शी क्राइड डिस्पेयरिंगली का मतलब है होपलेसली। माई आंट मेबल वॉज अ स्कूल टीचर इन लखनऊ, शी वॉज गोइंग टू शेयर आवर न्यू हाउस एंड शी वॉज टेरिफाइड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स पर्टिकुलरली स्नेक। अब जो नरेटर की आंट मेबल होती हैं वो एक स्कूल टीचर लखनऊ में रह चुकी होती हैं, और अब वो नरेटर के नए हाउस में उनके साथ रहने वाली होती हैं, लेकिन उनको रेप्टाइल्स जो कि पर्टिकुलरली स्नेक्स सांपों से उनको बहुत डर लगता है। टेरिफाइड का मतलब होता है डरना। वी वोंट लेट हर सी इट सेड ग्रैंडफादर, कि हम उसे देखने ही नहीं देंगे, ग्रैंडफादर कहते हैं। बैक इट गोज इनटू द टिफ़िन बॉक्स, अब ये टिफ़िन बॉक्स में वापस जाएगा, टिफ़िन बास्केट में। अर्ली मॉर्निंग द ट्रेन स्टीम्ड इनटू लखनऊ. Aunt Mabel was on the platform to receive us. Grandfather let all the other passengers get off before he emerged from the compartment with Timothy on a chain. अब एकदम सुबह सुबह अगले दिन हमारी जो ट्रेन है, नरेटर की ट्रेन है, वो लखनऊ स्टेशन पे रुक जाती है, पहुंच जाती है। वहाँ पे आंट मेबल उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेने आई होती हैं, लेकिन जो ग्रैंडफादर हैं वो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको ट्रेन से बाहर जा लेने देते हैं। जब सारे पैसेंजर्स चले जाते हैं फिर ही वो कंपार्टमेंट के बाहर आते हैं तिमोथी को चेन में लेके, क्योंकि तिमोथी एक पेट टाइगर है, तो टाइगर को देख के सब लोग डर जाएंगे, इसीलिए वो बाद में उसे लेके आते हैं। आई हैड चिप्स इन माई पॉकेट, सूटकेस इन बोथ माई हैंड्स, पोपी स्टेड पर्च्ड ऑन grandmother's shoulder, eyeing the busy platform with considerable distrust. अब यहाँ पे जो टिमोथी है उसको ग्रैंडफादर चेन में लेके आते हैं, और जो चिप्स होती है वो नरेटर की पॉकेट में होती है, और नरेटर के दोनों हाथों में सूटकेस होता है। पोपी जो होता है ग्रैंडमदर के शोल्डर पे होता है, और हर चारों तरफ प्लेटफॉर्म को देखने में बिजी होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्रैंडफादर तिमोथी को चेन में लेके आ रहे हैं, और जो नरेटर है उसकी पॉकेट में स्क्विरल है, और उसके दोनों हाथों में सूटकेस है, और जो ग्रैंडमदर के कंधे पे पोपी पैरेट बैठा हुआ है, और वो लोग लखनऊ स्टेशन पहुँच गए हैं। Aunt Mabel, a lover of good food, immediately spotted the tiffin basket, picked it up and said, "It's not very heavy. I'll carry it out to the taxi. I hope you have kept something for me." अब जो आंट मेबल होती हैं उनको अच्छा खाना खाना बहुत पसंद होता है। वो तुरंत टिफ़िन की बास्केट को देख लेती हैं और ले लेती हैं, और कहती हैं ये ज़्यादा भारी नहीं है, मैं इसे टैक्सी तक ले जाऊँगी, और मुझे भरोसा है कि तुम लोग इसमें कुछ मेरे लिए लेके आए होगे। A whole chicken, I said. अब नरेटर यहाँ आंट मेबल से कहते हैं कि हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा चिकन लाए हैं। We hardly ate anything, said grandfather. It's all yours, auntie, I added.
अब यहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं हमने शायद ही कुछ खाया होगा, और नरेटर कहते हैं कि ये सब आप ही का है आंटी। ओह गुड, एक्सक्लेम्ड Aunt Mabel. It's been ages since I tasted something cooked by your grandmother, and after that there was no getting the basket away from her. अब यहाँ आंट मेबल कहती हैं, ओह बहुत अच्छे, बहुत समय हो गया है कि मैंने तुम्हारी दादी माँ के हाथ का पका हुआ कुछ भी खाया हो। और उसके बाद वो बास्केट आंट मेबल के पास ही रही और उनसे किसी ने ली नहीं। Glancing at it, I thought I saw the lid bulging, but grandfather had tied it down quite firmly this time, and there was little likelihood of it suddenly bursting open. अब यहाँ पे नरेटर एक नज़र डाल के देखते हैं, एक नज़र डालते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि जो लिड है वो थोड़ी थोड़ी हिल रही है, ऊपर से फूल रही है। लेकिन इस बार ग्रैंडफादर ने उसको काफ़ी कस के बांधा होता है, तो इस बार उसके तुरंत ही खुल के फटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। An enormous 1950 Chevrolet taxi was waiting outside the station, and the family tumbled into it. Timothy got onto the back seat, leaving enough room for grandfather and me. Aunt Mabel sat in front with grandmother, the little tiffin basket on her lap. एक बहुत बड़ी सी 1950 की चेवरोलेट एक अमेरिकन ब्रांड है गाड़ियों का। इसकी टैक्सी बाहर स्टेशन के सबके लिए इंतज़ार कर रही होती है, और जो पूरी फैमिली है टम्बल्ड इनटू इट। टम्बल का मतलब है क्लाइंब क्विकली, तुरंत ही उसमें झटपट ये लोग बैठ जाते हैं। टिमोथी टाइगर होता है, पेट टाइगर, वो पीछे वाली सीट में बैठता है ताकि ग्रैंडफादर और नरेटर के लिए जगह बची रहे। और जो आंट मेबल हैं वो आगे वाली सीट में दादी माँ के साथ बैठती हैं, और जो टिफ़िन बास्केट होती है वो आंट मेबल की गोद में होती है। लैप का मतलब है गोद। टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस डियर, सेड ग्रैंडमदर। अब यहाँ ग्रैंडमदर बोलती हैं डियर यहाँ पे आंट मेबल के लिए है। अब यहाँ ग्रैंडमदर आंट मेबल्स बोलती हैं कि टैक्सी ड्राइवर को बताओ कि हमें कहाँ जाना है। वो थोड़ा नर्वस लग रहा है, ही इज़ लुकिंग रादर नर्वस। Aunt Mabel gave instructions to the driver, and the taxi shot off in a cloud of dust. अब आंट मेबल टैक्सी ड्राइवर को बताती हैं कि हमें कहाँ जाना है, और टैक्सी तुरंत ही शुरू होकर क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब एकदम स्पीड में निकल जाती है। वेल हियर वी गो, सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग इनटू अ न्यू हाउस। हम लोग एक नए घर में सेटल होने के लिए, शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। Poppy, perched proudly on grandmother's shoulder, kept one suspicious eye on the quivering tiffin basket. All aboard, he squawked. All aboard. तो यहाँ पे जो पोपी होता है वो गर्व से पर्च मतलब जो तोती की आवाज़ होती है, पर्च करता है गर्व से ग्रैंडमदर के शोल्डर में बैठे हुए, और वो अपनी एक निगाह क्विवरिंग का मतलब हुआ है हिलती हुई, शेकिंग, जो टिफ़िन बास्केट है उस पर रखता है और कहता है कि ऑल अबोर्ड, सब पहुंच गए। वो चिल्लाता है, स्क्वैक्ड मतलब है चिल्लाना। व्हेन वी गॉट टू आवर न्यू हाउस वी फाउंड अ लाइट ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर अस ऑन द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पे जब सब लोग नए घर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक हल्का फुल्का नाश्ता सबका डाइनिंग टेबल पे इंतज़ार कर रहा होता है, मतलब कि सादा नाश्ता पहले से ही तैयार होता है। It isn't much, said Aunt Mabel, but we will supplement it with the contents of your hamper. अब यहाँ पे आंट मेबल कहती हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके साथ जो कुछ भी आपके हैम्पर में है, हैम्पर का मतलब होता है लार्ज बास्केट विद अ लिड यूज्ड फॉर कैरिंग फूड इन। तो जो हैम्पर जिसमें पाइथन होता है उनको लगता है कि उसमें खाना है, और वो कहती हैं कि हम इस नाश्ते के साथ इस हैम्पर में जो भी है हम लोग उसको भी साथ में खाएंगे। And placing the basket on the table, she removed the lid. The python was half asleep with an apple in its mouth. As soon as she saw it, Aunt Mabel fainted away. अब Aunt Mabel उस बास्केट को, बड़ी बास्केट को टेबल पर रखती हैं और उसका ढक्कन हटाती हैं। लिड मतलब होता है ढक्कन, उसको हटाती हैं, और वहाँ पे बास्केट के अंदर जो पाइथन होता है वो नींद में होता है, हाफ अस्लीप मतलब नींद में होता है, और उसके मुंह में एक एप्पल होता है। और जैसे ही आंट मेबल उसको देखती हैं वो फेंटेड अवे, वो फेंट हो जाती हैं, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाती हैं। ग्रैंडफादर promptly picked up the python, took it into the garden and placed it over a branch of a guava tree. जो ग्रैंडफादर होता है, promptly का मतलब होता है तुरंत। ग्रैंडफादर तुरंत ही उस पाइथन को उठाते हैं
और उसे गार्डन में ले जाते हैं और वहाँ पे गुआवा के पेड़, अमरूद के पेड़ की डाल में उसे रख देते हैं. When Aunt Mabel recovered, she insisted that there was a huge snake in the tiffin basket. We showed her the empty basket. You are seeing things, said grandfather. It must be the heat, I said. अब जब आंट मेबल ठीक हो जाती हैं, रिकवर्ड मतलब ठीक हो जाती हैं, वो इस बात पे जोर डालती हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा सा सांप था उस टिफ़िन बास्केट में. और लेकिन जो नरेटर और जो ग्रैंडफादर हैं वो उन्हें उसे खाली बास्केट दिखाते हैं. और ग्रैंडफादर उससे आंट मेबल से कहते हैं कि तुम चीज़ें देख रही हो. और नरेटर है वो कहते हैं कि ये शायद धूप की वजह से हो सकता है, गर्मी की वजह से हो सकता है कि आंट मेबल को चीज़ें दिख रही हैं. Grandmother said nothing, but Poppy broke into shrieks of maniacal laughter, and soon everyone, including a slightly hysterical Aunt Mabel, was doubled up with the laughter. अब जो दादी माँ है वो कुछ नहीं कहती हैं, वो चुप रहती हैं उन लोगों की बात सुन के भी. लेकिन पोपी जो है, जिनका पेट पैरट है, वो चिल्लाने लगता है. मैनिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम, लाउडली एंड वाइल्ड. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और हंसने लगता है. और उसको देख के जल्दी सब लोग, इंक्लूडिंग हाइस्ट्रिकल आंट. हाइस्ट्रिकल का मतलब होता है अनकंट्रोल एक्साइटमेंट और एंगर. अब आंट मेबल भी उससे देख के रुक नहीं पाती हैं और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं. The exercise and question answer of this chapter is available in part 2 of this video. If you like the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.